غریب آدمی، ہیویا پن محبوب اعظمی کا ترجمہ، مطبوعہ ادبیات 1998۔ بوٹاؤ نے 2 دن سے کھانا چکھا تک نہیں تھا۔ تیسرے دن الگ صبح جب سورج کی روشنی نے اودے بادلوں کی اوٹ سے جھانکنا شروع کیا تو بھوک کے درد نے اسے جگا دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے ٹھنڈے اور سخت بستر پر لیٹا رہا۔ اس کی چندھی چندھی آنکھیں ایک عجیب چمک کے ساتھ ایک خزاں رسیدہ درخت کو تک رہی تھیں، مگر اس کا ذہن اپنے گاؤں کی لذیذ اور مزیدار چیزوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پھل، آلو، گنے، انجیر، تازہ کیکڑے، مینڈک، سمندری جھینگے اور پھر ڈریگن بوٹ کے تہوار پر تخمِ لوٹس کے گرم گرم پکوڑے اور موسم خزاں میں تیز پات کے کیک۔ اس کا دھیان ہر اس چیز پر جا رہا تھا جو کھانے کی تھی، حالانکہ محض خیال آ رہی کہ اس عمل سے اس کے خالق شکم کو پر ہونا ممکن نہ تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو ہر لطافت کی تفصیل میں جانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ تصور نے اس کے بسترے کے قریب رکھی ہوئی میز پر کھانے کی لذیذ اشیاء چننی شروع کر دی، حتیٰ کہ میز بھر گئی۔ پھر دوسری، پھر تیسری میز، یہاں تک کہ اس کا کمرہ میزوں سے بھر گیا جن پر مزیدار کھانوں کے ڈھیر تھے جو اس کی ذہنی اختراع نے اس کی خواہش کے مطابق لا کر جمع کیے تھے، اور یقیناً وہ اسے مرغوب تھے۔ وہ تصور ہی تصور میں انہیں نگلنے سے پہلے اپنے منہ میں رکھ کر مزے لے کر چپا رہا تھا۔ کتنی نامعقول بات ہے! وہ خود پر ناراض ہونے سے نہ رہ سکا۔ وہ جھنجھلا اٹھا اور دوبارہ اپنی بوسیدہ چھت کی طرف دیکھنے لگا، جس پر کاغذ کے پھٹے ہوئے ٹکڑے لٹک کر اس طرح لہرا رہے تھے کہ اب گرے اور اب گرے۔ دیواروں پر لگے ہوئے کاغذ بھی بہت زیادہ بوسیدہ، بدرنگ اور گندے ہو رہے تھے۔ ان پر جا بجا مری ہوئی مکھیوں اور مچھروں کا خون جم کر کالا پڑ چکا تھا۔ کہیں کہیں تحریریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ کہیں لکھا تھا ایک راہب نے شادی کر لی، کہیں فلاں فلاں شخص حرامی ہے۔ کسی بچے یا بڑے نے شاید وہاں اپنی موجودگی جتانے کے لیے تحریریں چھوڑی ہوں گی۔ یقیناً یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ درختوں اور کھڑکی کی بوسیدہ جالی میں سے دھوپ چھن چھن کر آہستگی اور نرمی سے اس پر پڑنے لگی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا کہ نرم و لطیف ہوا پر تیرتی ہوئی کسی بچے کی گانے کی مترنم آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ ہے وقت اٹھنے کا، منی بہن۔ گانے کی آواز سن کر بوٹاؤ کے چہرے پر ایک مکار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ جلدی سے کود کر بستر سے باہر نکلا اور کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی کتابوں اور کاغذوں کے ڈھیر میں سے اس نے موسم بہار میں ویسٹ لیک پر صبح کی تصویر نکالی اور دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ گانے والی ایک چھوٹی سی بچی تھی، بستہ اس کے کاندھوں پر جھول رہا تھا اور وہ اسکول جا رہی تھی۔ بوٹاؤ نے اس بچی سے 2 مہینے پہلے جان پہچان پیدا کی تھی۔ وہ اسے کبھی پوسٹ کارڈ اور کبھی تصویریں بھی دیتا تھا اور اس سے کھانے کی چیزیں لے لیتا تھا۔ اس کی اور اپنی عمروں کے درمیان کا فرق اور دوسری وجوہات سوچ کر اس کے چہرے پر شرم اور تذبذب کے تاثرات ابھرے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں جو میں کرنے والا ہوں، بڑی ہی حقیر اور شرم کی بات ہے، اس کے دل نے کہا، مگر خالی پیٹ میں بھوک کی بھڑکتی ہوئی آگ نے اس کے اس خیال کو بھی جلا دیا اور بچی کی طرف بڑھ گیا۔ منی لائی، یہ دیکھو، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسید بچی کو دکھاتے ہوئے کہا، اسے پسند کرتی ہو؟ بہت اچھی ہے، لاؤ یہ مجھے دے دو۔ لڑکی نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ بوٹاؤ نے اس کے اسکول بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیک ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا تم یہ کیک مجھے اس تصویر کے بدلے میں دو گی؟ بوٹاؤ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ٹھیک ہے، لے لو۔ لڑکی نے ٹیک دے کر تصویر لے لی اور خوش خوشی وہاں سے چل دی۔ ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے بوٹاؤ نے اپنے آپ سے کہا، میں بہت بد نصیب ہوں۔ ایک ننھی بچی کو اس کے ناشتے سے محروم کرنا بہت ہی ذلیل اور گھٹیا حرکت ہے۔ مگر بھوک کی شدت اس کے خیالات پر غالب آ گئی اور اس نے کیک کو منہ میں رکھ لیا۔ چھوٹے سے کیک نے اس کا منہ کو بمشکل بھرا اور پھر وہ جلدی ہضم ہو گیا۔ بھوک کی آگ زیادہ تیزی سے بھڑک اٹھی جس کی اسے امید نہ تھی، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ نہ کھانے سے تھوڑا سا ہی کھا لینا بہتر ہے، مگر بھوک تو اسے پہلے سے بھی زیادہ ستا رہی تھی۔ تھکا دینے والی بدمزگی نے اس کے دبلے چہرے کو اور بھی بے رونق کر دیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے اور ایسے لرزا اٹھے جیسے اسے سخت سردی لگی ہو۔
उसने इंतहाई मायूसी से सरगोशी में कहा, मुझे फाका ही करना चाहिए। बच्ची के गाने की आवाज़ दूर जाकर गुम हो गई। धूप ने ज़मीन पर गर्मी की एक हल्की सी चादर बिछा दी और गली में लोगों की चहल पहल हो गई। मैंने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है, लेकिन ये कितनी बदकिस्मती है कि मैं ऐसा जलील इंसान हो गया हूँ। उसने खौफजदा भिराई हुई आवाज़ में खुद कलामी की, बिलाशुबा मुझे आज बेबकाना हरकत करनी चाहिए, एक बहुत रानमा कारनामा, कुछ भी, मगर मुझे कुछ ना कुछ कर ज़रूर करना चाहिए। वो कपकपाता हुआ गली की तरफ चल दिया। जैसे ही वो दूसरी गली में मुड़ा, एक मोटा काला चिपटी नाक वाला कुत्ता एक जोड़ी में से कूदकर बाहर निकला। उसके मोटे गले में बंधी हुई घंटी टन टन कर रही थी। उसने बोटाओ पर गुर्राना शुरू कर दिया। बोटाओ को फिर अपनी जलालत और कमाई का एहसास हुआ। उसने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, इंसान इतने दौलत परस्त हैं कि उनके कुत्ते भी इमारत पसंद हो गए हैं। दरअसल ये सारी दुनिया ही दौलत परस्त है। कुत्ता और उसके नज़दीक आकर भौंकने लगा। बोटाओ का सब्र जवाब दे गया। उसने टूटी हुई ईंट का टुकड़ा उठाकर जोर से कुत्ते को मारा। कुत्ता उछल कर एक तरफ हो गया और ईंट का टुकड़ा जोरदार धमाके से एक चमकदार सुर्ख रंग के गेट पर लगा। इस गैर मुतवक्का नतीजे ने बोटाओ को एक तमकुनत बख्शी, क्योंकि उस गेट के अंदर अमीर लोग, दौलत परस्त लोग रहते थे, और उसी गेट से एक बावर्ची लंबी काली गौन पहने उनके लिए टोकरों में गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े, मुर्ग और बतख के रोस्ट, फल फ्रूट और दूसरी मरबूब और मज़ेदार चीज़ें लेकर जाता होगा। ये तस्वुर ही 2 दिन के एक भूखे आदमी को ये यकीन दिलाने के लिए काफ़ी है कि अंदर उसके दुश्मन हैं। कुत्ता टांगों में दुम दबाए हुए दूर से उस पर गुर्रा रहा था, लेकिन बुटाओ तो उस कुत्ते को भूल चुका था। उसका ध्यान तो मटन, चिकन और दूसरे मज़ेदार खानों पर लगा हुआ था। उसे फिर अपने खाली पेट और कमज़ोर टांगों का तकलीफ दे एहसास हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? ये भूख, वो बड़बड़ाया। मौसम सरमा की यख बस्ता हवा उसके जिस्म से टकराई। उसने कपकपाते हुए कहा, ठंड और भूख। अपने ख्यालों में गुम जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़ा तो कोई सख्त चीज़ उससे टकराई और साथ ही कोई ज़ोर से चिल्लाया, अंधे हो, देखकर नहीं चलते? मोटाओं ने मुंह उठाकर देखा। एक 14-15 साल का होटल का नौजवान लड़का करीब खड़ा हुआ उससे नफरत और गुस्सा से घूर रहा था। तुम पर क्या मुसीबत आई थी? लड़के ने गुस्से में कहा और सड़क पर बिखरी हुई रोटियों और पराठों की तरफ इशारा करके कहा, देखो तुमने सब खराब कर दिए। क्या मुसीबत है? बुटाओ ने झंझला कर, मुझे इनकी कीमत अदा करो। लड़का था कमाना लहजे में चीखा, लेकिन तुम तो खुद मुझसे टकराए थे। बुटाओ ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, मैं क्यों कीमत अदा करूं? तुम इन ज़ायाशुदा रोटियों की कीमत देना पड़ेगी, लड़के ने जोर देकर कहा। जब आदमी गरीब हो तो हर मामले में बदकिस्मत होता है। कहता हुआ बुटाओ वहाँ से खिसकने लगा, मगर लड़के ने भागकर उसका मैला कुचैला गाउन पकड़ लिया। भागना चाहते हो? वो चीखा। लाओ मेरी 5 रोटियों और पराठों की कीमत निकालो, दफा हो जाओ। बुटाओ देश में आ गया। उसने लड़के को जोर से धक्का दिया और आगे बढ़ गया। लड़का जमीन पर गिर गया। उसने जाते हुए बुटाओ को देखा, फिर जोर जोर से सिसकियां लेते हुए जमीन पर से मिट्टी में सनी हुई रोटियां इकट्ठे करते बुटाओ को कहा, तुम्हारा बेड़ा करो को डाकू बदमाश। लड़के की आवाज़ बुटाओ के कान से टकराई। डाकू का लफ्ज़ कुछ देर तक उसके कान में गूंजता रहा। डाकू, इस लफ्ज़ के पस मंजर में उसे दौलत के ढेर नजर आने लगे। उसने इस लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए खुद कलामी की, डाकू। फिर दुनिया भर के ऐशो आराम उसकी नज़रों में फिर आ गए। उसने तसव्वुर की आंख से देखा कि एक जंगल बियाबान में डाकुओं का एक गिरोह जमा है। शराब के दौर चल रहे हैं और करीब सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। एक तरफ भेड़ें, मुर्गियाँ और बतखें जमा है जिन्हें वो इसमें ख्वाहिश भून कर खाएंगे। फिर वो तसव्वुर में एक मलगजी सी चांदनी रात को दूर किसी जंगल में डाकुओं की एक कमीन गाह में छुप कर बैठ जाता है। उसके हाथ में राइफल है। उधर से एक ऑफिसर या एक अमीर आदमी जो भी वो गुजरता है। बुटाओ उसका निशाना लेकर गोली चला दी और फिर उसके ख्याल ने उसे ऐसी तमानियत बख्शी कि वो उनसे बगैर न रह सका। मगर इस ख्याल को अमली जमा पहनाने की ना उसमें हिम्मत थी ना सकत। डाकू, उसने सर को झटका और आगे बढ़ गया। करीब से एक छोटी सी गाड़ी गुजरी। पके हुए मीठे आलूओं की खुशबू उसके नाक से टकराई। आहा, मज़ेदार। फिर उसने अपने खाली पेट की शिद्दत का एहसास हुआ। मुझे आज कोई ना कोई हौसलामंद कदम उठाना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, एक काम, सिर्फ एक काम। फिर वो कुछ सोचकर खुद ही नाराज और दिल बर्दाश्त हो गया। यही एक बात होनी चाहिए, यही एक बात। वो बड़बड़ाया और शायद उसने कोई इरादा कर लिया कि तमानियत और फ़ख्र से उसका दिल मामूर हो गया और वो मजबूत कदमों के साथ सड़क पर चलने लगा। मगर इस दफ़ा उसकी सिमत उधर थी जिधर से वो आया था और जल्दी वो अपने घर पहुंच गया। बिस्तर पर लेट कर उसने गौर किया कि कितना ताकतवर, बुलंद हौसला और खुशहाल है, और इस ख्याल ने उसे कहा लगाकर हंसने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम अंदर हो? बाहर से आती हुई एक आवाज़ ने उसकी हंसी का सिलसिला तोड़ दिया। वो समझ गया कि यह आवाज़ उसकी बदनसीब मकान मालिका की है।
तन्हा सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया जो कि उससे किराया मांगने आई थी। अंदर आ जाओ, इसने कहा। मिस्टर चिन, क्या आज तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ रकम है? बुढ़िया ने पूछा। बहुत, उसने बेतमादी से कहा। ये सुनकर बुढ़िया के चेहरे से ताज्जुब और शक व शुबा नुमाया हुआ, फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब, लाओ मुझे कुछ दो ताकि मैं जाकर आटा खरीदूँ, मैं बहुत भूखी हूँ। मैं अभी जाकर रकम लाता हूँ, उसने बिस्तर से उठते हुए कहा। क्या तुम रकम ले आओगे? बुढ़िया एक लम्हे के लिए झिझकी, फिर इश्तियाक बुरे लहजे में बोली, तो फिर जल्दी करो खुदाया, मुझे यकीनन पेट भरने के लिए खाना चाहिए। ठीक है, उसने तकब्बुर और पुख्तगी से कहा और बुढ़िया को एक तरफ धकेलते हुए कमरे से बाहर निकल गया। धोखेबाज, जलील, बदमाश, उसने भी मेरा 3 महीने का किराया देना है। बुढ़िया उसे गालियां देने लगी। वो जानती थी कि बुढ़ाओ पहले की तरह इस दफ़ा भी जान बचा कर निकल गया है और वो हर दफ़ा उसे इसी तरह गालियां कोसने देती रह जाती थी। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। बुढ़ाओ के छोड़े हुए कागजात और किताबों के ढेर से वो पेट तो नहीं भर सकती थी। बुढ़ाओ गालियां सुनता हुआ उससे दूर होता चला गया। इसके जहन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी कि गरीब वाकई जलील है। इसे खाने के लिए गालियां तो मिल सकती हैं, मगर पेट भरने के लिए रोटी नहीं।